Hello children, welcome to your English video class. Children, you know that since past few videos, we are doing simple present tense. Children, I hope you all are watching the videos and you all are doing the exercises also, which we are doing in video classes. Children, since evaluation 2 is going to start, you must start your revision also. And the simple present tense is part of your evaluation 2, so do practice this. In today's video, we will do few more exercises because these exercises will give you ample practice of simple present tense. Without wasting much time, we will start a exercise. Children, today the exercise that we will do is related to, of course, simple present tense, and it is a sort of fill in the blanks where you have to choose the correct word and then you have to fill in the blanks. You have to choose the correct word and then you have to fill in the blanks. So let's start this exercise. Choose the words from the cloud and fill in the blanks. Okay, now I'm going to make a sort of cloud. Few words are written here, few words are written here. Learn, learn. Then protect, protect, protect. Pray, pray. Work, work. Serve, serve. Falls, falls. Sets, sets. Cells, cells. Then some words are here. Drink, drink. Makes, makes. Polishes, Pollishes. Flowers, draws. EAT and TREATS, treats. So there are two clouds and I have written some words in those clouds. Now I'm going to write the sentences and you have to choose the word from clouds and you have to fill in the blanks. I have read the words for you. मैंने आपके लिए सारे words पढ़ दिए हैं. आप भी इसे पढ़ के देखिएगा. Because you have to select words from the cloud and you must know how to read the words. ये words आपको पढ़ना आना चाहिए तभी आप कर पाएंगे, है ना? So first read the words so that you become familiar with the words. जो वर्ड्स आपको फिल करने हैं वो आप पहले पढ़ के देखिए बिकॉज यू मस्ट नो हाउ टू रीड द वर्ड्स. आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ जब वर्ड्स पढ़ना आएगा तभी आप एक्सरसाइजेस भी कर पाओगे. तो मैं आपके लिए फिर से एक बार ये सारे वर्ड्स पढ़ती हूँ, आप ध्यान से देखना.
learn, Learn, learn. Protect, protect. Pray, pray. Work, work. Serve, serve. Falls, falls. Sets, sets. Sells, sells. Next, drink, drink. Makes, makes. Polishes, polishes. Flows, flows. Draws, draws. Eat, eat. Treats, treats. Now let's do the exercise. The sun blank in the west. The sun blank in the west. वेस्ट डायरेक्शन में सन क्या होता है? सन सेट्स, सन सेट्स इन द वेस्ट. नाउ थोड़ा सा ये मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूंगी. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लास ऑल्सो. दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली परफेक्टली ऑल राइट, परफेक्टली करेक्ट. द सन सेट्स इन द वेस्ट. बट once while I was explaining this, one child said that in EVS we have read that that sun never sets, sun never rises, sun never sets. Sun is stationary, sun does not move. sun तो मूव ही नहीं करता है, सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं सन का अराउंड, है ना. आपने EVS में पढ़ा हुआ है कि सन मूव नहीं करता है, सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. तो सन तो मूव ही नहीं करता है, तो हाउ सन कैन सेट एंड सन कैन राइज? दिस इज परफेक्टली राइट क्वेश्चन कि सन कैसे सेट हो सकता है और सन कैसे राइज हो सकता है व्हेन द सन डज नॉट मूव. तो अब इसका आंसर ये है कि एक्चुअली हमें दिखता है सन सेट होता हुआ. एक्चुअली वी see that sun sets in the west. Actually it does not set because our earth moves around the sun, and that's why the part of the earth that receives light has day, and the part of the earth that does not receive light of sun experiences the night. तो अर्थ के जिस पार्ट पे सन की लाइट आती है वहां दिन होता है, और अर्थ के जिस पार्ट पर सन की लाइट नहीं आती है वहां पर रात होती है. अभी अर्थ के पार्ट पर लाइट आना और नहीं आना ये कैसे होता है? क्योंकि अर्थ जो है वो सन के चक्कर लगाती है. तो जब सन के सामने जो भी पोर्शन होता है अर्थ का, वहां पर दिन होता है, और जो बैक साइड में होता है वहां रात होती है. तो अर्थ पे हमें वो दिखता है कि सन राइज हो रहा है, सन सेट हो रहा है. मतलब सन का उगना और सन का ढलना ये हमें दिखाई देता है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है. तो that's why the sun sets in the west, because from earth we see that sun sets in the west. Actually it does not set, but from earth we see that the sun sets in the west because of the movement of the earth. Okay, so the sun sets in the west. Number 2. और आपको ये सेट्स वर्ड दिखा है? कौन से क्लाउड में है ये सेट? SETS. ये रहा. मैं उस वर्ड को कट करते जाऊंगी जैसे जैसे हम यूज करेंगे
वी विल कट दैट वर्ड सो दैट आपको पता चलता रहे कि हमने कौन से वर्ड को यूज किया है. द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो हमने ये वाला वर्ड यूज किया एंड आई कट दैट वर्ड. नेक्स्ट इज दे blank answers, full stop. They blank answers. Now which word we will use? आंसर को हम क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं आंसर को? Children learn answers. Learn. Learn answers. Children learn answers. बच्चे जो है आंसर को लर्न करते हैं. ठीक है, चिल्ड्रन लर्न आंसर्स. एंड चिल्ड्रन ऑल दीज सेंटेंसेस आर सिंपल प्रेजेंट टेंस. या तो ये जनरल फैक्ट है या फिर ये हैबिचुअल एक्शन है जो हम एवरी डे, एवरी वीक या एवरी मंथ जो भी हम रेगुलर बेसिस पर करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज नंबर 3. CARPENTER. Carpenter dash furnitures. कारपेंटर जो होता है वो फर्नीचर को क्या करता है? कारपेंटर डैश फर्नीचर्स. कारपेंटर मेक्स, फर्नीचर बनाता है. कारपेंटर मेक्स फर्नीचर. दिस इज अ फैक्ट. दिस इज अ फैक्ट. कारपेंटर मेक्स फर्नीचर, ये उसका काम है. दिस इज अ फैक्ट दैट कारपेंटर मेक्स फर्नीचर. अब सब लोग इस बात पे अग्री करेंगे ना कि कारपेंटर जो है वो फर्नीचर बनाता है. इट्स अ जनरल फैक्ट. Number 4. I dash apple juice. अभी एप्पल जूस को क्या करते हैं? Which word we will use? एप्पल जूस को क्या करते हैं? ड्रिंक करते हैं. I drink. I drink apple juice. This is a habitual action. तो I drink apple juice. मैं एप्पल जूस पीती हूँ या मैं एप्पल जूस पीता हूँ. I drink apple juice. Okay. Next word is a doctor dash the sick people. A doctor blank the sick people. अभी डॉक्टर क्या करता है? अभी डॉक्टर का क्या काम होता है? What does a doctor do? A doctor treats. ये एक हैबिचुअल एक्शन की बात है या ये एक ऐसा चीज है जो हर डॉक्टर करता है. ठीक है. एवरी डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट भी, लोगों को, सिक लोगों को ट्रीट करता है. तो दिस इज अ जनरल फैक्ट ऑल्सो एंड this is an action that is performed on daily basis. So a doctor treats. A doctor treats the sick people. Got it? Next. इसको भी erase कर देते हैं because there is no space. एक बार आप पढ़ लीजिए. The sun sets in the west. They learn answers. Carpenter makes furniture. I drink apple juice. A doctor treats the sick people. चलो और भी सेंटेंसेस हैं उससे पूरा कर लेते हैं.
Next sentence is sentence number 6 is a policeman dash us from criminals. Policemen dash us from criminals. क्रिमिनल्स किसको बोलते हैं? जो गलत काम करते हैं, जो क्राइम करते हैं, जो अपराध करते हैं. द पीपल हु डू रॉन्ग डीड्स. जो लोग गलत काम करते हैं, जो लोग इलीगल काम करते हैं, जो लोग क्राइम करते हैं, उनको बोलते हैं क्रिमिनल्स. तो पुलिस का क्या काम है? पुलिस क्या करती है? क्रिमिनल से हमें क्या करती है? पुलिस क्या करती है? प्रोटेक्ट. पुलिसमैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम क्रिमिनल्स. अच्छा, आप एक और चीज आप ध्यान रखते जाइएगा हर सेंटेंस के साथ कि जब नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो एक्शन के साथ एस या ई एस लग रहा है, लेकिन जब नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो एक्शन के जो है उसका ओरिजिनल फॉर्म है वो ही यूज हो रहा है. जैसे पुलिसमैन, MEN मैन, पुलिस मैन, ये प्लूरल नाउन है, एक से ज्यादा पुलिस वाले. तो यहाँ पर हमने जो वर्ब है, जो एक्शन है, उसका ओरिजिनल फॉर्म लिया है. हमने इसमें SES कुछ नहीं लगाया है. प्रोटेक्ट को प्रोटेक्ट एज इट इज इस वर्ड को ले लिया है. क्यों? क्योंकि ये हमारा प्लूरल है. ये मैं आपको पिछले कई वीडियो से बताते आ रही हूँ कि नाउन और प्रोनाउन जब सिंगुलर होते हैं तो हम वर्ब में S या ES लगाते हैं, लेकिन नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होते हैं तो हम वर्ब के ओरिजिनल फॉर्म को ही लेते हैं. ठीक है, चलिए. तो ये हो गया पुलिसमैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम criminals. Policemen protect us from criminals. Number 7. A florist blank flowers. अब यहां देखिए फ्लोरिस्ट कितना है? एक है. फ्लोरिस्ट कौन होता है? जो फूल बेचता है, उसको बोलते हैं फ्लोरिस्ट. तो फ्लोरिस्ट का काम क्या है? फ्लोरिस्ट सेल्स, बेचना. अब देखिए ओरिजिनल जो हमारा वर्ब है वो है सेल, SELL. सेल इज द ओरिजिनल वर्ब, पर हमने उसके साथ यहाँ पे लगाया है S. तो क्या हो गया? सेल्स. ये S इसलिए लगा है क्योंकि जो हमारा नाउन है, जो एक्शन कर रहा है, वो सिंगुलर है, वो एक है. अ फ्लोरिस्ट सेल्स फ्लावर्स. अगर यहाँ पर ज्यादा फ्लोरिस्ट होते, फ्लोरिस्ट्स, तो ये सेल हो जाता, तब ये S हट जाता, तब यहाँ पर हमें ओरिजिनल वर्ब यूज करना पड़ता. ठीक है, तो अ फ्लोरिस्ट सेल्स फ्लावर्स. एक फ्लोरिस्ट है इसलिए सेल्स. अ फ्लोरिस्ट सेल्स फ्लावर्स. Number 8. Waiters dash food in hotel. Now as you can see, यहाँ लिखा है waiters. Waiters मतलब एक से ज्यादा वेटर, एक से ज्यादा वेटर्स. तो वेटर्स, तो अब जो भी हम वर्ब यूज करेंगे उसमें वो ओरिजिनल फॉर्म में होगा, उसमें कोई S या ES हम नहीं लगाएंगे. वर्ब को हम उसके ओरिजिनल फॉर्म में ही यूज करेंगे. ठीक है, तो वेटर का काम क्या होता है? फूड को क्या करना? फूड को सर्व करना.
वेटर्स सर्व्स नहीं होगा, सर्व फूड इन होटल्स। वेटर्स सर्व फूड इन होटल्स। अगर यहाँ पे वेटर्स की जगह वेटर होता, सिर्फ एक वेटर, और वेटर तो यहाँ हो जाता सर्व्स, तब यहाँ एस लगाना पड़ता। ठीक है, वेटर सर्व्स फूड इन होटल्स, लेकिन यहाँ पे पहले से ही प्लूरल है वेटर्स, तो ये हो जाएगा सर्व फूड इन होटल। ये आपको बहुत इन सब चीजों का थोड़ा सा आपको पर्टिकुलरली ध्यान देना होगा कि जो एक्शन कर हो रहा है और जो वर्ब उसके साथ यूज हो रहा है, ये ध्यान रखिए कि कहाँ एस और ई एस लगाना है। वर्ड्स ऑलरेडी दिए हुए हैं तो यहाँ पर आपको कुछ चेंज नहीं करना है, लेकिन जिन सेंटेंसेस में आपको वर्ड्स नहीं दिए हुए हैं, जहां आपको खुद से डिसाइड करना है, वहां आप ध्यान रखिए कि जो एक्शन हो रहा है, जो नाउन है या प्रोनाउन है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। इस चीज का हमेशा आप ध्यान रखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस करते समय। ठीक है, अदरवाइज आपको मिस्टेक आपसे हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा नंबर 9, ही डैश हिज शूज। अब जैसा आप यहां देख रहे हैं प्रोनाउन यूज हो रहा है, प्रोनाउन है ही, और ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है, मतलब एक मेल जेंडर के लिए यूज होता है, एक लड़के के लिए या एक आदमी के लिए यूज होता है, मेल जेंडर के लिए यूज होता है ही, वो भी सिंगुलर, एक अगर मेल है तो। ठीक है, तो अब जो भी एक्शन होगा यहाँ पे हम वर्ब लिखेंगे, उसमें एस या ई एस लगा होना चाहिए। तो ये क्या है, ही डैश हिज शूज। अब इस शूज को क्या करते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड है जो शूज से रिलेटेड है? डू यू फाइंड एनी वर्ड दैट इज रिलेटेड टू शूज? यस, पॉलिशेस। ही पॉलिशेस। ओरिजिनल वर्ड हमारा क्या है? POLISH। ये हमारा ओरिजिनल वर्ड है, पॉलिश, POLISH, पॉलिश। लेकिन क्योंकि ये एक सिंगुलर प्रोनाउन है तो हम लगाएंगे इसमें ES। ही पॉलिशेस हिज शूज। ही पॉलिशेस हिज शूज। गॉट इट? नेक्स्ट, नंबर 10, स्नो डैश इन कश्मीर। Now again you can see that snow क्या है? सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है। बर्फ, ये जो फ्रिज में हम रखते हैं वो वाली बर्फ नहीं, जो आसमान से गिरती है वो वाले स्नो की बात हो रही है। उसको हम बर्फ, हिंदी में सब बर्फ बर्फ होता है, बर्फ बोलते हैं ना, तो हिंदी में अगर आसमान से जो गिर रहा है वो भी बर्फ है, और जो फ्रिज में हम जमाते हैं, पानी से जो जमाते हैं वो भी बर्फ है। लेकिन इंग्लिश में अलग हो जाता है, जो फ्रिज में हम जमाते हैं उसको हम आइस बोलते हैं, और जो आसमान से गिरता है उसको हम स्नो बोलते हैं। गॉट इट? डिफरेंस देखा आपने? आसमान से जो गिरा बर्फ उसको हम बोलते हैं स्नो, और जो हम फ्रिज में जमाते हैं बर्फ उसको हम बोलते हैं आइस। लेकिन हिंदी में दोनों ही बर्फ होता है, चाहे वो आसमान से गिरे और चाहे वो फ्रिज में हम जमा रहे हैं, दोनों ही हम बर्फ बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में अलग है। तो स्नो क्या होता है? आसमान से क्या होता है? गिरता है। कहां पर? कश्मीर में। कश्मीर एक ठंडी जगह है जहां पर स्नो क्या होता है? गिरता है। तो उसको क्या बोलेंगे? फॉल्स। स्नो फॉल्स, FALLS। अब आप देखेंगे कि फॉल जो है वो ओरिजिनल वर्ब था, FALL फॉल, ये ओरिजिनल वर्ब है। इसमें हमने लगाया है S। स्नो फॉल्स इन कश्मीर, क्योंकि स्नो जो है वो सिंगुलर नाउन है, तो स्नो फॉल्स इन कश्मीर। गॉट इट?
चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट नंबर 11, V dash to God। अब देखिए V, WEV, V क्या है? प्लूरल है। प्रोनाउन कैसा है ये? प्लूरल प्रोनाउन है V। तो इसमें क्या करना है, जो भी हम वहां पे वर्ब चूज करेंगे उसमें कोई चेंज नहीं होगा, मतलब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेगा। उस वर्ब में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो प्रोनाउन है वो कैसा है? वो प्लूरल है। ठीक है, तो वी डैश टू गॉड, हम गॉड से क्या करते हैं? फाइटिंग? नो। व्हाट डू वी डू? वी प्रे। वी प्रे टू गॉड। यहाँ पे कोई एस या कोई ईएस नहीं लगाया गया है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा यहाँ पे प्लूरल है। तो वी प्रे टू गॉड। वी प्रे टू गॉड। नंबर 12, अ रिवर डैश इन आवर सिटी। देखिए अब यहाँ पर रिवर कितना है? एक है। अ रिवर, अ मतलब वन। अ रिवर डैश इन आवर सिटी। अभी रिवर का क्या काम होता है? बहना, है ना? नदी बहती है, तो बहने के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है? फ्लो, है ना? और रिवर फ्लोज। अब ओरिजिनल वर्ब हमारा फ्लो है, FLOW, लेकिन उसमें हम लगा रहे हैं एस। फ्लो है ओरिजिनल वर्ब, इसमें हमने लगाया एस। अ रिवर फ्लोज इन आवर सिटी। अ रिवर फ्लोज, क्योंकि यहाँ पर एक है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम इसमें एस लगाएंगे। अ रिवर फ्लोज इन आवर सिटी। नेक्स्ट, आयुष डैश पिक्चर्स। अब देखिए आयुष जो है वो एक बच्चा है, एक लड़का है और सिंगुलर नाउन है। तो अब हम जो वर्ब यूज करेंगे उसमें भी या तो एस लगा होगा या ईएस लगा होगा या आईईएस लगा होगा। यहाँ पर आईईएस वाला एक भी वर्ड नहीं है, इसलिए मैं आईईएस नहीं यूज कर रही हूँ। यहाँ जो भी हमारे वर्ड्स हैं उसमें या तो ईएस लगा है या फिर एस लगा है। अब क्योंकि आयुष सिंगुलर नाउन है तो जो भी वर्ब होगा उसमें एस या फिर ईएस लगा होगा। तो आयुष जो है वो पिक्चर्स को क्या करते हैं? हम लोग पिक्चर क्या करते हैं? ड्रॉज। ओरिजिनल वर्ब है DRAW, ओरिजिनल वर्ब है ड्रॉ, लेकिन उसमें हम लगाएंगे एस क्योंकि हमारा नाउन सिंगुलर है। आयुष ड्रॉज पिक्चर्स। नेक्स्ट, नंबर 14, यू आर अ गुड स्टूडेंट। You are a good student. You dash hard. You dash hard. अब यहां देखिए, You are a good student. अब you जो है वो सिंगुलर के साथ भी यूज होता है और प्लूरल के साथ भी यूज होता है। you एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है, इसीलिए हम जो इसके साथ वर्ब यूज करते हैं वो प्लूरल वाला ही यूज करते हैं, मतलब कि ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो क्या होगा? यू डैश हार्ड, यू वर्क हार्ड। यू आर ए गुड स्टूडेंट एंड यू वर्क हार्ड। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट है हमारा नंबर 15, आई डैश मोमोज। अब मोमोज को क्या करते हैं, खाते हैं। तो हमारे पास एक वैसे भी वर्ड बचा हुआ है, वो है ईट। आई ईट मोमोज। और इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। ये हमारा एक्सरसाइज पूरा हो गया। और इसी के साथ ही हमने अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला एक्सरसाइज भी एक कंप्लीट किया। वीडियो भी कंप्लीट हमारा हो गया एक इसके साथ, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना जरूरी था। एक और वीडियो हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का, पर आज नहीं, वो हम करेंगे कल। उसमें हम कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस करेंगे जो जनरली हम कंफ्यूजन रहता है आपको कि एनिमल के साउंड से रिलेटेड, तो वो हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको करेंगे और वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से उसको यूज करना है, पर वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिए और कोई डाउट है तो डेफिनेटली यू कैन क्लियर इट। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।